Assalamu alaikum everybody at Karachi, Lahore, Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Quetta, Pindi, and of course Peshawar, if anybody is there. I hope it's a very fine, sunny, and of course cold morning, I can say, also in Karachi. Because I was talking to my friend in Karachi, and he was saying, okay, we are wearing a uniform jersey. So it means there is a cold wave there. Anyhow, I hope everybody is fine. So let's start our discussion. Last time I talked about general aspects about the different analytical methods, in which we defined different types of methodologies which are used for the analysis of different types of analytes, in which we discuss the endpoint colorimetric analysis, then followed by kinetic, which consisted of endpoint kinetics, then 2-point kinetic, and then multiple point kinetic or continuous monitoring. It was followed by a very brief, slides was simply flashed. Kindly अपना ये mute कर लीजिए. It was followed by a flash of different slides, which was showing a very brief summary about the different commonly used analytes, their definitive method, reference method, and commonly used methods. And at the last, we discussed about isotope dilution mass spectrometry. I hope the things were quite clear, because now we are going to have a specific type of methodology for each of the analytes. So today's my first thought is about the glucose estimation. ये kindly किसी का ये mute है, unmute है, kindly इसको mute कर लीजिए. ठीक, thank you. The most important thing which I want to emphasize about today's lecture is that glucose, whenever we start all our lectures and all our practicals, we always start from glucose. Because almost all the chemical pathology workload laboratories which are carrying out chemical pathology, majority of the tests which are carried out belong to the glucose. So it's very, very important to have a very clear concept about what glucose is, what are its different methods, and what are the methods which can be adopted at different types of laboratories. If it's a small laboratory having a very small workload, then a different methods will be adopted. Of course, for automation, it will be a different method, and so on. So today's talk is about that aspects which should be covered while you are selecting or adopting a methodology for your particular lab. It's not there if you have a very small lab and you have a very small workload of the glucose, then you will adopt a method which is commonly used for automation. So the selection of methods, what are its advantages, what are its disadvantages, and how to adopt these methodologies, today's talk relate to those aspects. Of course, this is our specific learning outcome. The different topics which I will cover during my talk. Now, as we know, that glucose is a very simple sugar. It consists, its formula, molecular formula is C6H12O6. And it means that it consists of 6 carbon atoms, so it is a hexose. Now let's have a very basic description about the structure, and I will let you know why this understanding of this structure is most important. Glucose exists in 2 forms. One is the open chain form, and other is a cyclic or closed form. About more than 90% of the glucose which exists, it is in the cyclic form. When we talk about the open chain form, as we see on the left side, that there is a carbon which is in the red color. This is carbon 3, 4, 5, and 6. 6 one is that which is in pinkish color. So the carbon number 1, it is
connected to an oxygen atom. This is known as a basic aldehyde group. And this is the basic aldehyde group which is responsible for the reducing characteristics of sugar, of sugar and of glucose. So understanding the structure is very important, because when we talk about how the different sugars act as a reducing sugars, we must know that this is the aldehyde group which is responsible for the basic reducing characteristics of a particular sugar. And on the right side, there is the cyclic form of glucose. Now, we will be knowing in literature, understanding in the literature and studying in the literature, that they are the DEET form of glucose and they are L form of glucose, dextrorotatory glucose and liver rotatory glucose. It's why it is important in our specialty. I will let you know, but simply see that there is a very small difference between the D form of glucose and the L liver rotatory glucose. That in the dextrorotatory glucose, we see that at carbon number 2, carbon number 4, and carbon number 5, the hydroxyl group is on the right side. And at carbon number 3, the hydroxyl group is on the left side. Whereas in the liver rotatory form of glucose, it is just opposite. That is, the carbon number 2, 4, and 5 hydroxyl group is on the left side, and on 3 it is on the. So अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का शीशा है, ठीक है ना जी, एक्सेप्ट कि ऑक्सीजन को हम देखें, ऑक्सीजन एक दूसरे का शीशा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बाकी आप देखें ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 में ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. सो दीज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवर रोटेटरी ग्लूकोज. मैं जब लिटरेचर पढ़ा था तो आई केम टू नो कि लिवर रोटेटरी ग्लूकोज is the form of glucose which has less sweetening effect as compared to the dextro form of glucose. और ये जो कैंडल शैंडल है, इसमें एक्चुअली लिवर रोटेटरी ग्लूकोज बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसको वो डाइल्यूट करके या डिफरेंट मेथोडोलॉजी से अडॉप्ट करके जो आपके कैंडल वगैरह है उसमें इस फॉर्म को भी जो है ना वो कई प्रिपरेशन जो है वो यूज करती है. सो वन मस्ट हैव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. Now, there is another form which is called alpha glucose and beta glucose. Sorry, ये थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी है कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए बीटा एंड डेल्टा ग्लूकोज, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये क्यों इंपॉर्टेंट है, because different type of enzymes they are acting on different forms. The major difference on alpha glucose and beta glucose is simply one. If we see at carbon number 1, we see H is on the upper side and OH is on the lower side, while at carbon number on the beta form of glucose, the carbon number 1 hydroxyl is on the upper side, and so if it is they are on the opposite side of the ring, that is a CH2OH on carbon number 6 and hydroxyl ion on carbon number 1, if they are on the opposite side, यानी एक ऊपर है और दूसरा नीचे है उस रिंग के, so it is alpha glucose. And if they are on the same side, that is a hydroxyl group on carbon number 1 and CH2OH group on carbon number 6, if they are on the same side, this is beta glucose. मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि look at the carbon number 1 of alpha glucose and beta glucose, which has been highlighted on the slide. We see that on alpha glucose side, the carbon number 1 contains hydroxyl group on lower side, and if we see carbon number 6 that contains CH2OH group, so they are on the opposite side of the ring, while at the beta glucose, if we see that the carbon number 1 has hydroxyl group that is on the same side as that of the carbon number 6 has CH2OH group. So this is basically a 3-dimensional view of the glucose. और इसमें जो carbon number 1 में अगर एक ही side पर जो है वो OH of the carbon number 1 and CH2OH at the carbon number 6, they are on the same side, so this is beta glucose, and if they are on the opposite side, this is alpha glucose. It is very important to understand this thing, because there are certain enzymes such as glucose oxidase and glucose oxidase which act only and only beta D form of glucose.
So we have to, and we will see that although majority of the form which is present in the solution glucose, they are in the beta form, but for the enzyme to act, all the alpha form has to be converted to beta form. For that we use a specific type of enzyme. तो मतलब उर्दू में बताने का मकसद ये है कि अगर डेल्टा और लिवर यूट्रेटरी डेक्स्ट्रोयूट्रेटरी एंड लिवर यूट्रेटरी ग्लूकोज में फर्क सिर्फ ये है, वो मिरर इमेज का है. कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 दे आर जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. और दूसरा मैंने बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओ एल्डिहाइड ग्रुप, reducing property of the glucose is because of the presence of aldehyde group at carbon number 1. So आप ये देखें कि ये एक ही स्लाइड पे मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा दी. Now अल्फा और बीटा ग्लूकोज का मैंने आपको डिफरेंस ये बताया कि जस्ट दी 3-dimensional व्यू अगर हम इसको ग्लूकोज को मेजर करें, और अगर वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 का अगर CH2OH और OH जो है they are on the opposite side of the ring, this is alpha glucose, and if they are on the same side of the ring they are the beta glucose. I hope ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो कि I have made it clear. Now before going into there are certain important facts about the blood glucose which we must have a clear understanding at this point. ये आप सबको पता है, just a revision of our basic knowledge. We know that in individuals with the normal hematocrit, जो whole blood glucose fasting concentration है, that is approximately 10 to 12% lower than the plasma glucose concentration. ये everyone knows. और उसका हमें पता है कि जी वो उसमें RBCs की dilution होती है और multiple factors. We will not go into detail. लेकिन these facts should be known before we study the important different methodologies. सर हाँ जी, कि जी होल ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के 10 to 15% जो है वो लोअर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड अदर डाइल्यूशन इफेक्ट्स. सेकंड इज के इन द फास्टिंग स्टेज द कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू वीनस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन. उसमें सिर्फ 2 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का फर्क होता है. लेकिन जस्ट आफ्टर द मील और वी कैन से आफ्टर द ग्लूकोज लोड, ये जो डिफरेंस होता है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में और वीनस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में, इट इज अबाउट 20 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. यानी कि जो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है दैट इज 20 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मोर देन द वीनस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन. सो दिस पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि जब हम ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं अपना glucometer के साथ. So this point must be kept in mind. And it is recommended for the diagnosis, monitoring, for seeing of complications of diabetes, venous blood glucose is recommended because it is very easy to take that sample. ठीक है ना? जो कैपिलरी हम वो ग्लूकोमीटर से करते हैं, that gives a rough idea. But for the accurate diagnosis, management, and for monitoring and different complications, we have to take the venous plasma glucose. And of course, it's a known fact in a separated non-hemolyzed sterile serum, यानी कि ऐसा सीरम जो कि सेल से जिसको सेपरेट किया गया हो सेंट्रीफ्यूज से, जिसमें हेमोलिसिस ना हुआ हो, ऑफ कोर्स जो कि स्टेराइल हो, यानी कि जो कि जिसमें इन्फेक्शन ना हुआ हो, उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम उसको रखेंगे तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्टेबल रहती है फॉर 72 आवर्स. और अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इट इज ओनली स्टेबल फॉर 8 आवर्स. मेरी बात समझे ना? यानी कि इसका मकसद बताने का मकसद ये है कि जब आप ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं तो उसको इमीडिएटली सेंट्रीफ्यूज करके सेल से उसको सेपरेट करें और उसको ऐसे कंटेनर में रखें जो कि स्टेराइल हो, यानी कि जिसमें इन्फेक्शन ना हो. तो अगर आप उसको स्टोर करते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल रहती है फॉर 72 आवर्स. और अगर उसको सेपरेट करने के बाद अगर आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो इट रिमेन्स स्टेबल फॉर 8 आवर्स. जेल ट्यूब में भी? जी सर, जेल ट्यूब में जी सर. अगर आपने 1-2 घंटे में करना है? बिल्कुल सर. उसके बारे में जी सर.
और जो हम यूज कर रहे हैं। जी सर, उसमें ये है कि सर जो जेल ट्यूब में वो करते हैं दैट रिमेन्स स्टेबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स के लिए सर, वो कहते हैं सर इट इज स्टेबल। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। जी डेफिनेटली जो सैंपल आप लेते हैं, आइडियल सैंपल जो कंटेनर होता है वो होता है फ्लोराइड ऑक्सिलेट कंटेनर, यानी कि आपने ब्लड ग्लूकोज का सैंपल लेना है तो ऐसा कंटेनर लें जिसमें फ्लोराइड ऑक्सिलेट यानी सोडियम फ्लोराइड मौजूद हो, ऑक्सिलेट मौजूद हो। अगर ऑक्सिलेट नहीं है तो जो हम यूज करते हैं पोटेशियम EDTA हो और या उसमें सिट्रेट हो, ठीक है ना जी, ये चीजें उसमें अगर होंगी। इनका मकसद ये होता है कि जो ऑक्सिलेट और सिट्रेट वगैरह हैं या EDTA हैं वो आपके क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को रोकते हैं, और फ्लोराइड जो है वो आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको रोकता है। सो दिस इज द आइडियल कंटेनर वी मस्ट यूज। और ऑफ कोर्स फ्लोराइड क्यों हम डालते हैं कि इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, और एनुलेज एक एंजाइम है जो कि हमारा एब्डोमेन में हाफ पाथवे में जो है वो एंजाइम यूज होता है कि जिसमें वो उसको इनहिबिट कर देता है। एंड दिस फ्लोराइड रिक्वायर्स मैग्नीशियम, ठीक है ना, टू कॉज इनहिबिशन ऑफ एनर्जी। सो इट वाज अ ब्रीफ समरी, वेरी ब्रीफ समरी अबाउट द फैक्ट्स व्हिच वी मस्ट नो बिफोर एनालाइजिंग आवर स्पेसिमेन। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का जो है ना जब हमें पता होगा, जब हमारे पास स्पेसिमेन आ जाएगा, तो अगर ये हमने पॉइंट्स कैटर फॉर किए होंगे तो हमारी डेफिनेटली जो एनालिसिस वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछे जाते हैं ये पॉइंट। जी जी, इसमें सिर्फ ये इनसे पूछें कि व्हाई वी वांट टू ऐड एंटीकोगुलेंट इन इट इन एडिशन टू द फ्लोराइड। जी जी, सवाल ये है कि जी फ्लोराइड तो हम इनहिबिट, मैंने लिख दिया कि ये एनुलेज को इनहिबिट करता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रेजेंट करता है। व्हाई वी मिक्स एंटीकोगुलेंट, ऑक्सिलेट, सिट्रेट या EDTA? एनीबॉडी? रेड से हेमोलाइज ना होगा, रेड से हेमोलाइज होगा तो उसमें जो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रेड से रप्चर हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाएगी। जी जी से कंज्यूम हो जाता है क्लॉट फॉर्मेशन में। जी जी बिल्कुल, कि जी वो जो जब अगर आप एंटीकोगुलेंट नहीं डालेंगे तो वो उसमें कंजम्पशन के जो है उसके ग्लूकोज के चांसेस ज्यादा होते हैं। Coagulation is a metabolically very active process. Coagulation itself is a metabolically active process and it requires a lot of energy, and that energy is present only in the form of glucose. So that's why when we're talking of glucose, we want to prevent that energy consumption and preserve our glucose. That's why it is plasma. It is not serum which is recommended. So ideal tube for this is this fluoride the fluoride plus oxalate of fluoride plus EDTA tube, which is usually gray top tube. But we can do it on the serum also. If you are using a gel separator. The purpose of the gel is to separate RBCs from plasma, from serum. So it's also okay, not that good as fluoride. Remember this thing, not that good as fluoride, but it is still we can use it. What is the advantage of using this gel tube on fluoride? Excellent. Dr. Saleh ne bataya ki then we do not have to use a separate tube for glucose. The same tube which we are using for urea, LFT, etc., we can use for glucose, and it's a big advantage. So that's why we compromise on some preservation and use gel tubes, and so that we can use the same tube for that. Please, sorry, sir. No, sir. Thank you very much. Now let's start our today's talk. And my first question is glucose estimation in clinical samples. Hexokinase is considered more accurate as compared to the glucose oxidase. यानी कि हम जो methodology different use करते हैं उसमें एक glucose oxidase methodology है और एक hexokinase. And it is said that the hexokinase is considered more accurate as compared to the glucose. Which of the following factors is mostly responsible for this greater accuracy? One is greater specificity of the glucose 6-phosphatase reaction. Number 2 is greater specificity of the hexokinase reaction. Hexokinase is a coupled enzyme reaction. Low Km of the hexokinase, and hexokinase is a zero order reaction. Anji, ARNG.
Glucose oxidative is second. चलें जी, ABC में तो बताएं ये कौन सा है जी? अलवीना, ये है विजयमरीन, ये सुंबल। चलिए जी, ठीक है। मेजॉरिटी पीपल से कि इट इज भावलपुर से भी ये है, ठीक। कोयटा से भी ये है जी, ठीक। थैंक यू जी। सो इट इज ए। डॉक्टर उमा सिकंदर is from SIUT Karachi. अच्छा अच्छा, ठीक। नो, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली, फिर वही वाली बात आएगी कि क्योंकि मैं बहुत पुराना हूं तो मैं पुरानी चीजों से प्यार ज्यादा करता हूं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉक फ्रॉम द हिस्टोरिक मेथड्स। लेट मी टेल यू, ये जो हिस्ट्री होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप सब बातें करेंगे कि जी हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, लेकिन जहां कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन होगी ना, वो बात करेंगे कि जी ये यूनिट 1905 में एस्टेब्लिश हुई और इसकी जी ये 1905 में जो इसकी तस्वीरें हैं ये हैं। हालांकि वी डोंट हैव टू मेमोराइज दोस थिंग, और लेकिन ये एक जहां पे भी आप होगी ना, कहीं पे भी आप देखेंगे, आप गूगल में किसी भी चीज को सर्च करें तो वो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करेगा। So I am also like to start my talk with historic methods. So please don't mind, मतलब अगर आप मुझे कहें कि ये बूढ़ा आदमी है और ये पुरानी चीजों को नहीं छोड़ता, लेकिन you must have an idea कि what are the different historic methods. और ये मैं आपको बताऊं कि ये आप किताबों में चले जाएं, इवन गूगल भी आप करें तो आपको ये बस वो चीज़ा मेथड मिलेंगे। कोई कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। So I have try to summarize the things. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी इन हिस्टोरिक मेथड्स के पीछे? बेसिक चीज क्या थी? बेसिक चीज वही है कि जो हम हमेशा यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली इन यूरिन एनालिसिस में हम यूज करते हैं कि ग्लूकोज along with the other sugars, it is a reducing sugar, and I have told you that this reducing power of the glucose is because of the presence of aldehyde group. और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, इसको हम डिफरेंट रीजेंट्स के साथ मिक्स करते हैं, जिसमें हम बेनेडिक्ट रीजेंट के साथ मिक्स करते हैं और जिसमें डिफरेंट किस्म के आइंस होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बेनेडिक्ट में जो है वो कुप्रिक आइन होते हैं, कुप्रिक आइन को जो है वो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कुप्रिसाइन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट वी मेजर डिपेंडिंग अपॉन द कलर। तो ये जितने भी हिस्टोरिक मेथड्स हैं ना, ज्यादा के ज्यादा, ठीक है ना जी, वो स्टार्टिंग इस मेथड से होते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे मेथड्स होंगे कि जिसमें मोलिब्डेट हम ऐड करेंगे, कुछ ऐसे बड़ी खूबसूरत किस्म की ट्यूब होती थी जिसमें हम एक बड़ी क्लोज सी ट्यूब रखते थे कि जिसमें एक दफा बनने के बाद उसकी दोबारा ऑटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ठीक है ना जी, वो फॉलन व्यू ट्यूब होती थी, एंड थिंग्स लाइक दैट। और मजे की बात ये कि जब मैं वही वाली बात, हम जब ग्रेडिंग पर आए थे तो ये उस वक्त सिर्फ ग्लूकोज ऑक्सीडेज शुरू हुआ था, 92 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और हमसे इम्तिहान के अंदर ये सारे हिस्टोरिक मेथड्स पेपर में मुझे याद है कि आते थे। तो नो इट्स मोर देन 22 इयर्स। तो लेकिन ये कि चूंकि मेरे बचपन की ये चीजें हैं, तो मैं इसको एक दफा इसको आपके सामने रिवाइज जरूर करूंगा, ठीक है जी। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया कि जी वो एक कलर प्रोडक्ट बनता था जिसको हम फोटोमेट्रिकली मेजर करते थे, ठीक है जी। अच्छा, क्या लिमिटेशंस थी इन मेथड्स की? बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ठीक है जी। वो हाली नॉन स्पेसिफिक होते थे जी। मैंने जैसा बताया कि जो आपका ये बेनेडिक्ट मेथड था, मतलब इसमें बहुत सारी शुगर जो है वो इसमें वो तमाम शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है वो इसके साथ होते थे। सेंसिटिविटी इसकी बिल्कुल लो थी। इसमें सैंपल की प्रिपरेशन जो है वो हमें चाहिए होती थी। फिर इसके बाद ये कि इसमें लॉट ऑफ इंटरफेरेंसेस होते, फॉल्स पॉजिटिव होते थे, फॉल्स नेगेटिव होते थे, ठीक है ना। तो इन विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह वो मुझे याद है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कलर टीवी आया, कलर के बाद, बल्कि मुझे याद है कि वो शुरू में रिमोट वाले टीवी नहीं होते थे, वो आप वो बहुत मजेदार होता था। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बचपन में देखा होगा कि वो जिसको पकड़ के आप उसके 12 चैनल होते थे, वो मैनुअल आप करते थे, कोई रिमोट नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था कि रिमोट मुझे पकड़ाओ, वो खुद ही आपको तकलीफ करनी पड़ी। लेकिन उस वक्त मजेदार ये होती थी कि एक ही चैनल होता था, ठीक है जी। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो जी सर, sorry sir. to Sir.
And that's because in those methods we used to detect or estimate sugar, not glucose, because those methods were not specific. They would estimate all the reducing sugars, and since that time this glucose is known as sugar. So please don't call it sugar. Now we are not measuring all the reducing sugars. We are specifically measuring now glucose. So if you belong to that 25 years old era, then you may use the term sugar. But if you belong to modern time, you are after 92, then you should use glucose. Now it's up to you. Other reducing substances हैं, हाँ. वो भी interfere करते हैं. जी सर हाँ, वो करते थे ना, sugar करते से. थे, तो बिल्कुल Other than sugar. वो सबको collectively करता था. तो ये तो बहुत, it's a big revolution, this glucose oxidase method with Sir Naveed discuss shortly. This is a big revolution, because whenever your colleague physician, colleague gynecologist call it sugar, you should hate it, because you are not measuring sugar, you are measuring glucose. So this is a very important lesson for today, that a chemical pathologist should never call it sugar. You must call it glucose. And same in the exam, if you call it, I have done sugar fasting, then you know what will happen to you. Patient कहना ग्लूकोज का नहीं डॉक्टर साहब मेरा शुगर भी करना है. Sugar. ये भी करना है लेकिन शुगर भी करना है. Sugar. But that's why we now a trainee who is on the rotation training here, she's from microbiology, she's asking this. The purpose of this 10 weeks rotation in chemical pathology is to teach you such things. It should polish you. And the polishing here means that you should call glucose, you should not call sugar. We'll see again that you must call ALT, not SDPT, for God's sake. Okay, thank you. ठीक सर, thank you sir, thank you very much. So these are some of the methods. ठीक है, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. ये मैं ढूंढता रहा, लेकिन एक फॉलन व्यू ट्यूब होती थी. वो होता ही था कि जब उसके अंदर रिएक्शन होता था तो वो उसका जो मुंह होता था वो बहुत छोटा सा होता था. उसका मकसद ये होता था कि ये एक्सपोजर जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ना, वो उसको ऑटो ऑक्सीडेशन करके उसके कलर को चेंज कर देता था, जो उसका रिड्यूसिंग कलर होता था. तो ये किसी जमाने में हमारे डिपार्टमेंट में थी, लेकिन अभी मैं जब आया हूँ तो मैंने ये पुरानी चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली. ठीक है जी. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स एंड दे वर ऑल एंड पॉइंट मेथड्स. ठीक है ना जी, और इसी प्रिंसिपल पे जो है वो बेस करते थे. ठीक है. Now let's start talk of the modern era. Today we are using routine methods, and they are all enzymatic endpoint methods. Enzymatic colorimetric methods basically. ठीक है ना. Hexokinase method, glucose dehydrogenase method, glucose oxidase method, glucose oxidase coupled with oxygen consumption. और ये अगर आपके इम्तहान में आपको ग्लूकोज का अगर आपको सैंपल दिया गया है तो your viva will start from here. You name the different glucose methods. तो आपने वो जो historic method है उनके नाम ही लेने. You will start your talk from this method. And of course मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड हाईलाइट की थी, और ये वो चीज है जो कि आप हर जगह पे ये चीज देखेंगे, हर जगह पे ये स्लाइड नजर आएगी. ये वाला पॉइंट, आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो जो डब्बे वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी. सो दिस इज द डेफिनेटिव मेथड फॉर मोस्ट ऑफ द एनालाइट्स. एंड ऑफ कोर्स रेफरेंस मेथड. इसके रेफरेंस मेथड एक्सोकाइनेज, कुछ कहते हैं कि जी ये बिल्कुल एक्सोकाइनेज मेथड इज रेफरेंस मेथड, कुछ इसके बारे में अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स जिस पे मैं गया हूं उन्होंने यही कहा है कि एक्सोकाइनेज मेथड इज द रेफरेंस मेथड फॉर ग्लूकोज. Now we will start our talk about the hexokinase method.
as I've told you that it is a reference method for blood for glucose estimation, and this is a method which has been developed and approved by American Association of Clinical Chemistry and CDC. What does CDC stand for? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल. तो ये हमारे जो भी डिफरेंट मेथडोलॉजी, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना वेट शेड की बात हुई थी कि वो एक NBS होता है, एक NIST होता है, एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स होता है, फिर BIPM होता है. तो वो वेट्स के लिए जिस तरह होता है, इसलिए मेथडोलॉजीज के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, क्योंकि उस मेथड्स को जो है वो रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर उनको वो देते हैं कि इट इज अ डेफिनेटिव मेथड, रेफरेंस मेथड, या ये रूटीन यूज का मेथड है. सो दिस इज अ मेथड व्हिच हैज बीन डेवलप्ड एंड अप्रूव्ड बाय American Association of Clinical Chemistry and by the CDC. It involves basically two reactions. Coupled reaction नहीं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ये you have to see and you have to interpret, you have to understand and you have to memorize these steps. जब इसके ऊपर हेक्सोकाइनेज मेथड, हेक्सोकाइनेज एंजाइम करता है एक्ट, तो इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम. ठीक है जी. अगर कोई ऐसा एनालाइट है कि जो कि मैग्नीशियम की जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है और मैग्नीशियम जो है वो उसमें होता है, मिसाल के तौर पर EDTA जो है, EDTA चिलेट करता है कैल्शियम को और वो कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम. सो अगर आपने कोई सैंपल ऐसा ले लिया है कि जिसमें आपने EDTA मिली है, तो वो ये मेथड एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है बिकॉज हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्स मैग्नीशियम. ठीक है जी. सो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज. इट एक्ट्स ऑन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जो कि उस डेफिनेटली रेजेंट में मौजूद होता है. इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate and then it forms ADP as a side product. The next reaction is that glucose 6-phosphate NADP, ये आपको पता ही है डिफरेंट कोफैक्टर्स होते हैं, NAD होता है, NADP होता है, ADP होता है, ये डिफरेंट कोफैक्टर्स हैं. सो ये उस रीजन में मौजूद होते हैं. जो ग्लूकोज 6-phosphate जो बनता है, it combines with a cofactor NADP in the presence of glucose 6-phosphate dehydrogenase to form a product which is known as the 6-phosphogluconate plus NADPH. ठीक है जी. इसको अंडरस्टैंड ये करें कि ग्लूकोज when it is acted upon by hexokinase in the presence of magnesium, it आपके रीजन में ATP मौजूद है, then it's combined with that ग्लूकोज आपका सैंपल में मौजूद है, it is converted into 6-phosphate, then glucose 6-phosphate is acted upon by another enzyme which is present in our reagent, that is a 6-phosphate dehydrogenase, and it is present in the presence of a cofactor NADP which is also present in the reagent, and it is converted into 6-phosphogluconate and NADPH. And we measure this NADPH at 340 nanometer, and it is proportional to the glucose concentration. So it is a kinetic method जिसको हम measure करते हैं. ठीक है जी. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ओके जी. आई थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है. It is a very simple reaction that the glucose is allowed to react with the reagent containing hexokinase, glucose 6-phosphate dehydrogenase, and ATP. In the first reaction, glucose in the presence of ATP requiring hexokinase and magnesium is converted into glucose 6-phosphate, and glucose 6-phosphate then reacts with a cofactor NADPH, and there is a reduction of that cofactor. It is converted into NADPH, and this is NADPH is our final product of interest, and it is measured at 240 nanometer. ये एक वेवलेंथ होती है कि जिसके ऊपर वो जब हम पढ़ेंगे लाइट का फिनोमेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये डिफरेंट, मतलब हर जगह पे आपको एक डिफरेंट फिल्टर मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगी. कोई 505 पे हम करेंगे, अभी देखेंगे, तो आप कहेंगे कि जी ग्लूकोज तो एक ही है. कभी नवीद साहब जो है इसको 340 पे मेजर कर रहे हैं, कभी 505 पे कर रहे हैं, कभी किसी और पे कर रहे हैं, कभी 450 पे कर रहे हैं. सो इट्स अनदर स्टोरी कि जी ये इनको किस तरीके से मेजर करते हैं. डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स और द मेथडोलॉजी विच वी यूज, we select our wavelengths. So we will discuss it in detail when we come to the that particular part.
समथिंग, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ना, जरा थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि आप केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं, तो थोड़ा सा ये तो मतलब मुझे भी आता है। अभी आपको ना एज ए केमिकल पैथोलॉजिस्ट आगे पता होना चाहिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के सोर्सेज क्या है। तो बेसिकली दे आर द टू सोर्सेज, वन इज ऑफ द बैक्टीरियल ओरिजिन एंड अदर इज ऑफ द यीस्ट ओरिजिन। ठीक है जी, ये दो इसके सोर्सेज हैं। ठीक है जी, अगर ये यीस्ट ओरिजिन की है तो इसमें जो को फैक्टर मैंने आपको बताया ना, दैट इज NADP। ठीक है, तो हमने ये जो अपने इस रिएक्शन में जो हमने यूज किया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इट इज फ्रॉम द यीस्ट ओरिजिन बिकॉज इट इज हैविंग अ कोफैक्टर अलोंग विद इट NADP। सो ये वाला जो हमारा रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो हमने यूज किया है, दैट इज ऑफ द यीस्ट ओरिजिन। जो बैक्टीरियल ओरिजिन का होता है वो NAD होता है। ठीक है जी, तो अगर आपने किसी भी आप लिटरेचर पढ़ती हैं और उसके अंदर ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज मेथड के अंदर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ आपने उन्होंने लिखा हुआ है कि NAD हम यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू शुड हैव कांसेप्ट इट इज ऑफ द बैक्टीरियल ओरिजिन। अब इसकी जरूरत क्या है, मतलब क्या इसकी यूटिलिटी है? तो देयर इज, मतलब कोई बनाने वाले ने इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब अंग्रेजी रखी है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। सॉरी जी, मैं जरा बात आम फहम जुबान भी इस्तेमाल करता हूँ, तो ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना जी, मतलब आई कांट, हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच जो कि उर्दू और पंजाबी में जब आप समझाएं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो वी बीइंग एशियन हैव द एडवांटेज कि वी कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है जी, सो अगर आप मतलब इस चीज को माइंड ना करें तो लेट्स वी विल अडॉप्ट द सेम वे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग द बैक्टीरियल एंजाइम NAD, समझें कि ये क्या होता है। ये एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको आप पढ़ें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये क्या है। स्टेटमेंट इज कि रेड ब्लड सेल G6 phosphate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase which use NADP as a substrate do not interfere in the analysis of glucose। इसका मतलब ये है कि जो हम यीस्ट का यूज करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, उसमें NADP जो मौजूद होता है वो जब इंटरफेरेंस होती है उसकी रेड सेल G6PD के साथ, जिसकी वजह से वो उसको कंज्यूम कर लेता है NADP को, और जो हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटेशन चाहिए फॉर ग्लूकोज के लिए वो लेस होती है। लेकिन अगर हम इसको NAD को यूज करें तो ये ग्लूकोज का जो 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है वो उसको टच नहीं करता। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज NADP। ठीक है ना, NAD if we doesn't want to have interference from red cell glucose 6 phosphate dehydrogenase। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो रेड ब्लड सेल में G6PD जो होता है ना, वो NADP को जो है ना वो अपने सबस्ट्रेट के तौर पे कंज्यूम करता है। ठीक है जी, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो अब दो जगहों पर NADP यूज हो रहा है कि एक तरफ हम ग्लूकोज के लिए भी एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये रेड ब्लड सेल भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ये वो मौजूद होगा तो ये दोनों तरफ कंज्यूम हो जाएगा और हमें जो है ये एक फॉल्स लो वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप NAD यूज करेंगे तो वो रेड ब्लड सेल जो G6PD है वो इसको NAD को यूज नहीं करता। सो देयर इज नॉट, सो इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस जो है वो कम है। आई होप आई हैव मेड द थिंग अंडरस्टैंडेबल। मैं इसको दोबारा बताता हूं कि जो NADP हम यूज करते हैं दैट is also consumed normally by red blood cells G6PD। ठीक है, तो उसमें जब हम इसको ग्लूकोज के लिए भी यूज करेंगे तो वो वहां पे भी इस्तेमाल हो जाएगा और ग्लूकोज के लिए हमें जो है ना वो कम अवेलेबल होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम कम मेजर करेंगे। लेकिन अगर हम NAD यूज करेंगे तो दैट विल नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय एनी ऑफ दीज इंटरफेरेंस, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा हमें जो रिक्वायर्ड जो NAD को मेजर करना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। मेरे ख्याल आई हैव मेड द थिंग अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज क्लियर। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद हेक्सोकाइनेज मेथड। बुक कहती हैं कि जी जो प्लाज्मा आप यूज करें आइडियली
ठीक है ना। आइडियली इसको जो है ना वो आपने इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, और इस मेथड्स को यूज करने के लिए वो कहते हैं कि जी इसको डीप्रोटीनाइजेशन करनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे यूज करते हैं। ठीक है ना। एक टेक्निक उन्होंने बताई है कि जिसमें हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और जिंक सल्फेट, यानी कि सैंपल की प्री ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी है, ये इनका कहने का मकसद है। तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। लेट्स सी कि व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। फिर ये होता है कि जी उसको डीप्रोटोनाइज करने के बाद जब हम तो सुपर नाइट्रोजन को लेते हैं, सुपर नाइट्रोजन को लेके वही इसके साथ जो इंक्यूबेट करते हैं और वो करते हैं। ठीक है ना, वो जो हमने बात की है। लेकिन हेक्सोकाइनेज मेथड जो है वो दैट इज दी, अभी तक अगर हम डेफिनेट मेथड को अगर ना करें तो वो कहते हैं कि आफ्टर डेफिनेट मेथड इट हैज अ हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एंड ये मेथड है कि आंखें बंद करके आप जो है ना इसको यूज कर लें सीरम के लिए, सीएसएफ के लिए, यूरिन के लिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड्स के काफी सारी लिमिटेशन है, लेकिन ये वो मेथड है कि जिसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन आफ्टर आइसोटोप डाइल्यूशन जो है, ये इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो बहुत अच्छी है, और इसको बिल्कुल आंख बंद करके आप सीएसएफ, सीरम और यूरिन के लिए जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। नो लेट्स सी के बुक्स क्या कहती हैं। डेफिनेटली वो कहते हैं कि ये इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके फिर बहुत सारी हुई कि अगर ये रेफरेंस मेथड है तो इसको फिर जो है ना ये अगर इतना प्रॉब्लम ओरिएंटेड है तो उसको यूज ना करें। तो फिर उन्होंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स मेथड किए, मैंने इसकी साइट पे भी गया हूँ। उन्होंने फिर आखिर में जाके एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है जिसका 4 सफ़ों का आर्टिकल है, और आखिर में जाकर उन्होंने छोटी सी बात ये कही कि नहीं जी, अब रूटीन लेबोरेटरी यूज में जो है ना सीरम को बगैर प्रोटीनाइजेशन के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते, कोई इतना ज्यादा मतलब वो उसमें फर्क नहीं है। लेकिन मतलब अब आप कहेंगे कि इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद आप उधर ही ले हैं जहां से हम चले हैं, तो एटलीस्ट एज ए केमिकल पैथोलॉजिस्ट यू शुड नो कि जी हमारे प्रोसेस की ये लिमिटेशंस हैं। ओके, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एंड बाय डेफिनेटिव मेथड्स दे हैव कम टू नो कि जी बिल्कुल आप इसको बगैर ट्रीटमेंट के जो है ना वो सीरम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो एटलीस्ट द लिमिटेशंस ऑफ दिस प्रोसेस। अब वो ही हमारा वाला सवाल जो हमने अभी पूछा था कि जी ये क्यों इतना एक्यूरेट मेथड है। तो इसका एक्यूरेट मेथड का ये है कि इसका जो सेकंड पार्ट है मेथड का, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, इट हैज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम सर्टेन थिंग्स एक्सेप्ट कि हमें पता हो कि ये ओरिजिन जो है वो यीस्ट का है या बैक्टीरिया का है। ठीक है, अगर हम उसमें बैक्टीरिया के ओरिजिन का एनएडी यूज कर लेते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड ये है कि ये सिर्फ हेक्सोकाइनेज के लिए, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं उसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इसका मैंने आपको बताया कि एक ही इसका मतलब वो है ये डीप्रोटीनाइजेशन जो है, लेकिन उसको भी उन्होंने अभी रूल आउट कर दिया है। सो इट इज मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट इज a very precise and accurate method, and it is a reference method. We are using this method without deproteinization. Okay, हेक्सोकाइनेज मेथड का मैंने आपको बताया कि हेक्सोकाइनेज मेथड में आप ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं with a reagent which contains ATP and in the presence of magnesium ions, and it is acted upon by the hexokinase enzyme. It is converted into the glucose 6-phosphate. Then glucose 6-phosphate is acted upon by glucose 6-phosphate dehydrogenase, and in the presence of a cofactor NAD या NADP जो भी आप यूज करते हैं, the product which is formed of our interest is NADH or NADPH, and it is measured photometrically at 340 nanometer. ठीक है जी। और it is a very accurate and precise method, and it can be very confidently used for serum, CSF and urine. ठीक है जी। तो I think so okay, I have made the things understandable. Now our second question is regarding glucose dehydrogenase method. It is a very specific method of glucose estimation. All of the following facts are true regarding this method, except it can be used on automation. GDH is isolated from bacteria Bacillus, microbiology wale, measured at 340 nanometers. NADP is used as an indicator enzyme. Only method measuring beta D glucose. ये बहुत मजेदार MCQ है। मतलब इसका मतलब ये है सिनेरियो का कि
कि जो ये तमाम जो चीजें लिखी हुई हैं ये ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज में होती हैं, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है कि पांचों में से कौन सी ऐसी चीज है कि जो कि ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज के लिए एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, गुड जी। इट इज दैट के कहते हैं कि जी इट इज नॉट द ओनली एंजाइम जो कि बीटा डी ग्लूकोज को मेजर करता है। अब देखें ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी ये सारी चीजें आएंगी, अल्फा डी आएगी, बीटा डी आएगी, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना होती तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बीटा डी ग्लूकोज क्या है। ठीक है जी, नॉट सी व्हाट इज, इस चीज के पीछे फिनोमेना क्या है। लेट्स टॉक अबाउट glucose dehydrogenase method. It's a highly specific method, but it is only, पता नहीं क्या वजह है कि ये it's very rarely used, but it is used for automated instruments. इनके लिए बहुत मतलब यूज किया जाता है, but not routinely used. अच्छा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और जीडीटी ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज, इन दोनों के लिए जरूरी है कि ग्लूकोज जो सॉल्यूशन की फॉर्म में है दैट शुड बी ओनली इन बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म। सो जो हमारा ग्लूकोज जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है इसमें 34% जो है वो अल्फा ग्लूकोज होता है और बाकी 60+% जो होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है। अगरचे उसका शेयर बहुत ज्यादा है, लेकिन वी वांट कि हम पूरी की पूरी ग्लूकोज जो उस रीजन में मौजूद है उसको हम मेजर करें, क्योंकि अगर हमने सिर्फ बीटा मेजर कर ली तो वो हमारी जो एक्चुअल हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी अचीव नहीं होती। तो देयर हैज टू बी समथिंग इन ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज मेथड एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड व्हिच शुड कन्वर्ट ऑल द अल्फा ग्लूकोज टू बीटा। बताइएगा मुझे इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है? काइंडली ये जरा थोड़ा सा हम बिल्कुल दरमियान में है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग राइट्स आके देने पड़ते हैं जी। ठीक है, तो वो जो चीज जो अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है इसे इस फिनोमेना का म्यूटा रोटेशन कहते हैं और जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसे म्यूटा रोटेज कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो भी मेथडोलॉजीज हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज की, ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज की, अगर उसके लिटरेचर को आप पढ़ें तो ये एंजाइम जो है उसमें मौजूद होता है। ठीक है जी, ये दिस इज द एंजाइम बीटा डी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, वही ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज इट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन एंड NADH। और ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें हम कोई NADH को मेजर करते हैं 340 नैनोमीटर, काइनेटिक मेथड में भी कर सकते हैं, एंड पॉइंट में भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द मेथडोलॉजीज। एक्चुअली ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये आपको एक नटशेल बता रहा हूँ, मतलब एक समरी बता रहा हूँ। आप नेट पे चले गए और आप इसमें लिखें कि डिफरेंट कंपनीज प्रिपेयरिंग ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज मेथड्स किट्स, तो हर एक किट में जो है ना वो आपको बहुत सारी और निटी-ग्रिटीज मिलेंगी कि जी किसी में जो है वो 340 पे मेजर हो रहा है, किसी में कुछ मेजर हो रहा है, कोई एंड पॉइंट है, कोई वो हर एक ने जितना बेसिकली साबुन शुरू में इस्तेमाल होता था वो लाइफ बॉय होता था, फिर उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आई, लक्स आई, और मतलब पाम ऑलिव आ गया, आजकल डव इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब उसमें आप कुछ खुशबुओं वाले साबुन होता है, मतलब कि हर जो सप्लायर होता है या जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है वो उसको खूबसूरती को करने के लिए कि जिसमें टाइम पीरियड कम हो गया, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें रीजन कम इस्तेमाल होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट एडिशनल थिंग्स यू विल फाइंड lot of variations, but the basic thing जो कि इन तमाम methods की है वो यही है कि this is the basic reaction which is used in these methods. ठीक है ना, and glucose dehydrogenase it can be collected from, mostly it is collected from a bacteria bacillus and it is highly specific for the enzyme, और ये जो इसकी जो accuracy और precision है वो कहते हैं कि hexokinase method के जो है वो बराबर। तो इस डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज मेथडोलॉजी में मैंने सर्च किया, कोई और ऐसी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या डिटेल्स? ये जो
यूरिस्टिक्स या ग्लूकोस्टिक्स वो आ गया। उसमें अच्छा आ गया सर, ठीक आ गया। सारा कुछ कौन सा? So glucose dehydrogenase method is the method which is highly specific, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती। दूसरा ये कि इसमें जो इट इज मेथड विच इज अडॉप्टेड फॉर ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैंने आपको बता दिया इसमें म्यूटर रोटेशन होता है। दिस इज द बेसिक एंजाइम reaction and the enzyme is most commonly derived from bacteria bacillus। ये हमारे जितने भी जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ये जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी कजन बनती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है ना, जो एंजाइम और ये चीजें जो है ना बैक्टीरिया से लेते हैं और उनको करते हैं। तो इसका फर्स्ट कजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Now our next scenario is this is very important। ये ब्लड गैस एनालाइजर है। ब्लड गैस एनालाइजर में हम रूटीन की one method of determining blood glucose is with the help of blood gas analyzer, which is a part of point care testing, which is a common method by which currently blood gas analyzers measure glucose। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड गैस एनालाइजर्स हैं वो ग्लूकोज को मेजर करते हैं। कौन से मेथड से हम मेजर करते हैं? हाँ जी, conductometry using glucose oxidase method, coulometry using glucose hexokinase, amperometry using glucose CRI। जी आप तो सब बहुत पता है, ठीक है ना? चलें, अच्छी बात है जी। मतलब एक्चुअली वी आर हैविंग अ रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, बट लेकिन वो जो नए लोग हैं उनको जरा बताना पड़ेगा कि ये amperometry क्या है और ग्लूकोज ऑक्सीडेज क्या है। ठीक है जी, तो आंसर इज amperometry using glucose oxidase। हाँ, क्या है जी? काइंडली म्यूट डॉक्टर रोमा ना जी, काइंडली आप ये कोयटा से जी आया है मैसेज कि जी हमारी हाँ ठीक है, हाँ ठीक, चलें जी, कोई नहीं, वी आर ऑल फैमिली, तो ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। ये क्या चीज आ गई? चलें जी, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सॉरी, ग्रीन कलर कुछ ज्यादा आ गया। अच्छा ये है जी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये एक बायोसेंसर है। एक्चुअली होता ही है कि ब्लड गैस एनालाइजर्स में डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के जो और निटिग्रिटीज होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। तो उसमें हम बेसिकली जो ब्लड गैस एनालाइजर है उसको हम यूज करते हैं सोडियम, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन उसके साथ इसमें और बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें मतलब ग्लूकोज भी मेजर करते हैं, यूरिया मेजर करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं ग्लूकोज की तमाम मेथोडोलॉजीज क्या हैं। तो वन ऑफ द मेथड बाय व्हिच द ग्लूकोज इज मेजर्ड इन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मीन कि ये जो पेशेंट के साथ आपकी जो कि इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे दे, ग्लूकोमीटर टाइप हो गया, या मतलब जहां पे आप इमीडिएटली रिजल्ट। एक्चुअली ग्लूकोमीटर में ये फिनोमेना नहीं है, उसका थोड़ा सा फिनोमेना डिफरेंट है। ठीक है ना, ये जो फिनोमेना है दिस इज रिलेटेड टू ब्लड गैस एनालाइजर। अच्छा, इसमें काला काला है सारा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो दरमियान में जो काला सा सर्कल है, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो है ना, ये दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड इट इज बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस तरफ है दिस इज अ सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ये आप पढ़ेंगे कि जी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं और फिर उन इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द कुछ सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन एक एनोड होता है और एक पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है, और फिर नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं और इसी वजह से करंट जनरेट होता है। बस ये आप समझ लें। तो दिस इज बेसिकली प्लैटिनम इज एन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये जो सिल्वर है दिस इज कैथोड, और इसके इर्द गिर्द वाला ये जो इलाका है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्यों हम पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं वी विल डिस्कस इट। अभी इस फिनोमेना को समझे कि एक्चुअली ये फिनोमेना है क्या। ठीक है ना, सॉरी मतलब मैं बहुत सारे स्टेप्स इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद ये जो दरमियान में ये वाली जो चीज है ना, ये जो लाइट ग्रीन सी है, ये एक मेम्ब्रेन है जिसके 3 हिस्से हैं। ठीक है जी। एक हिस्सा वो है, अभी मैं इसमें शो नहीं कर पाया, एक हिस्सा वो है जो कि इस तरफ करके है कि जिसमें आप दिस इज परमिएबल टू ग्लूकोज। ठीक है जी। फिर दरमियान में एक हिस्सा ऐसा है कि जहां पर ग्लूकोज, जब यहां आपका सैंपल अप्लाई होता है, मतलब सैंपल अप्लाई तो नहीं होता, ये यहां जाता है, यहां से ग्लूकोज सैंपल इस मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। यहां पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है जी। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम इस ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है और इसको H2O2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड से। और फिर ये जो तीसरी मेम्ब्रेन है, दैट इज परमिएबल टू H2O2। ठीक है जी। आई रिपीट कि ये जो है, ये आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इट एक्ट एज एनोड। ये जो है, दिस इज सिल्वर, दिस एक्ट एज ए कैथोड। ये जो है, ये एक मेम्ब्रेन है जिसके 3 पार्ट है, 1, 2 और 3 पार्ट। ठीक है जी। ये जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है, इसके इस तरफ ग्लूकोज है, क्योंकि हम ग्लूकोज मेजर कर रहे हैं। तो ग्लूकोज जो है वो दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ग्लूकोज। इट एंटर्स इनटू दिस मिडल जो पोर्शन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लूकोज ऑक्सीडेज लगा होता है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है H2O2 में। ठीक है जी। और H2O2 जो है, ये मेम्ब्रेन जो है उसको परमिएबल है और ये H2O2 अंदर चला जाता है। वहां जाकर ये जो आपका एनोड होता है, इसके साथ वहां पे चला जाता है एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो इट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, या फ्लो ऑफ करंट होता है, एंड दिस फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि दिस इज कॉल्ड एम्पेरोमेट्री। ठीक है जी। इस टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा ये जो ग्लूकोज का सेंसर है, इसको समझने के लिए ये करेंगे, दिस इज बेसिकली अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड व्हिच एक्ट एज एन एनोड। एनोड मीन नेगेटिवली, जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। दिस इज सिल्वर इलेक्ट्रोड व्हिच एक्ट एज अ कैथोड। ये जो है, ये इसके इर्द गिर्द वाला ये जो इलाका है, दिस इज फिल्ड विद पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ये जो है बेसिकली ये मेम्ब्रेन है, इसके 3 पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दरमियान वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये बाहर वाला पोर्शन है, दैट इज परमिएबल टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इस मेम्ब्रेन से एंटर होके दरमियान वाले पोर्शन में चला जाता है। अब ग्लूकोज पे एक्ट करने के लिए हमें कोई एंजाइम चाहिए, तो वहां पर बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद है जो ग्लूकोज को एक्ट करता है और इसको H2O2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद मतलब डेफिनेटली इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, वो हम आगे देखेंगे क्या है। H2O2 जब यहाँ मिडल मेम्ब्रेन में बनता है, तो फिर इस मेम्ब्रेन से इट इज परमिएबल टू H2O2, ये यहाँ चला जाता है प्लेटिनम। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन इसकी होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा H2O2 होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। सो इट मींस जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। यानी जितना ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा H2O2 बनेगा, जितना H2O2 होगा उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट अबाउट द एम्पेरोमेट्री बायोसेंसर। आई होप कि इतने बैकग्राउंड के साथ चीजें थिंग्स मैंने सिर्फ सिंपल सा बनाया है। एक्चुअली इसमें बहुत से कहानियां हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ इट एक्ट्स। तो वो इंशाल्लाह हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि इट इज वन ऑफ द मेथड्स, so I thought it appropriate to discuss this method at this forum. I hope so कि I have made the things understandable. चलिए ठीक है। ये जितनी भी मैंने आपको कहानी बोली है,
ये मैंने कहा हवा में ना रहे, इसको मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, तो ताकि आप जब इसको पढ़ें तो इसको मतलब आपको ये देखें जी, ये H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन नो जी, ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ कि as a consultant chemical pathologist of a DHQ hospital, you receive complaints from diabetic patients that glucose results from your lab are sometimes higher as compared to those from the care lab. The only method available to you is glucose oxidase, and the problem sometimes also appears in your QC result. Sample collection procedures are appropriate. What could be the cause of this problem and how will you overcome it? यानी उनका कहने का मतलब ये है कि आपके जो ग्लूकोज के रिजल्ट्स हैं वो हायर हैं एज कम्पेयर टू मतलब जो कि वो मतलब कर रहे हैं फ्रेशली क्लीनिंग। तो और आपके जो पास जो भी मेथड अवेलेबल है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जी? हाँ जी जी, इंटरफेरेंसेस यूरिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड का वो यहाँ कहाँ आगे? नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कहाँ आगे? वो तो कम करेगा, आप जो कह रही हैं एस्कॉर्बिक एसिड वो तो कम करेगा। मैंने सवाल की वो सीक्वेंस चेंज कर दिया जी। एनीबॉडी प्लीज? नहीं, इसका आंसर दें सारे। नहीं जी, एनीबॉडी फ्रॉम कराची ट्यूब? ओ जबरदस्त, जबरदस्त। ये कौन है? आईफोन? सॉरी आईफोन, ये हमें बिल्कुल नहीं पता आईफोन कौन है। एक्सीलेंट, मेरी तरफ से आईफोन। सिप्तान फ्रॉम आगा खान, जबरदस्त। सिप्तान एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ठीक है, नो आंसर इज करेक्ट। लेट्स सी के ये क्या चीज होती है जी। इट इज अ पॉजिटिव इंटरफेरेंस, ठीक है, बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। इसमें होता यह है कि जो ब्लीच होता है, ब्लीच में H2O2 होता है, और सॉरी हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है जी। तो जब आप अपनी टेस्ट ट्यूब्स को वॉश करते हैं तो उसमें हम ब्लीच यूज करते हैं, तो ब्लीच के अंदर जो है हाइपोक्लोराइट होता है, और हाइपोक्लोराइट जो है वो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इसका जो है वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस होती है फॉर द ग्लूकोज। ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी जो ग्लूकोज होती है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअल वो नहीं होते, बल्कि इट गिव्स falsely high results because of the presence of that oxidizing agents. Actually phenomena क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड के साथ। ठीक है, तो इस स्टेज पे ये है कि व्हाट वी डू के हम वॉशिंग के लिए जो ब्लीच यूज करते हैं, ठीक है ना, ब्लीच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो उसके अंदर एक हाइपोक्लोराइट, सुनना ना आपने हाइपोक्लोराइट, वो 10% हाइपोक्लोराइट माइक्रोबायोलॉजी वाले जो केमिकल वो हम मेथडोलॉजी यूज करते हैं एंटीसेप्टिक्स के लिए। ऐसे ही देख, मैंने आपको कहा था इट इज वेरी मच रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है जी। तो इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इट हैज दी कैपेसिटी, मतलब कैपेबिलिटी के ये उसके साथ जो हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड में जो हमारा बनता है दरमियान में जो प्रोडक्ट, मतलब जो भी इंटरसेप्टर बनता है, एक्सेप्टर बनता है, उसको जो है ना ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस करता है। वो तो हम आगे देखेंगे कि वो रिएक्शन एक्चुअली है क्या। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि जी उसको आप ब्लीच से ना धोएं और मतलब उसको प्रॉपर दूसरी तरीके से वॉशिंग करें। इस फिनोमेना को हम थोड़ी देर बाद अभी आगे भी देखते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, next question is there are a number of interferences that in glucose oxidase by glucose oxidase method that lead to erroneous results of the glucose. All these interferences कौन कौन से हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड में बहुत सारे इंटरफेरेंसेस होती हैं, तो वो कौन कौन सी इंटरफेरेंसेस होती हैं उनको एक बताएं कि वो क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। हाँ जी बताएं जी, पहले बताएं कि इंटरफेरेंसेस कितने टाइप्स की होती हैं जी ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड में। पूरा SAQ बिल्कुल, ये SAQ मैंने डाल दिया पूरा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट थी इस स्टेज के ऊपर। हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम कोयटा? मैडम आप माइक यूज कर सकती हैं।
जी मैडम सालिया, कितनी किस्म की इंटरफेरेंसेस होती हैं? 2 किस्म की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरफेरेंसेस। हाँ जी ओशाक, पॉजिटिव इंटरफेरेंसेस कहाँ से आती हैं जी? Hemolysis, bilirubin. Positive interferences are from the oxidizing agents, जितने भी हम यूज करते हैं फॉर वॉशिंग ऑफ ट्यूब्स या कोई भी मतलब वो जो है मतलब जो भी इसमें करते हैं. And what are the negative interferences? There is a long list. जी मैडम सुंबल. हाँ ठीक है, मैडम कह रही हैं कि जी बिलिरुबिन है, यूरिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ग्लूटाथायोन है, ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन है. ये तमाम वो चीजें हैं जो कि पॉजिटिव इंटरफेरेंसेस करती हैं. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नेगेटिव इंटरफेरेंसेस करती हैं. हाउ दे एक्ट? क्या कहलाती हैं? ठीक है, अब कहानी को हम बिल्कुल अब क्लियरली हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड. सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड्स. ये अभी आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये कोई 2 दिन पहले भी आपने इस तरह की कोई स्लाइड देखी है. ठीक है, सिंपल फिनोमेना इज दैट इस स्लाइड के अंदर आपको मैं बहुत सारे फिनोमेना मैं एक्सप्लेन करूंगा. सिंपल इज दैट ग्लूकोज in the presence of glucose oxidase, it is converted into gluconic acid and H2O2. And ये देखें, ये हमने 2 दिन पहले भी देखा था. कहाँ देखा था जी ये इसको? ट्रिंडर रिएक्शन में. अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिंडर रिएक्शन और आइसोटोप डाइल्यूशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपको हर जगह पे ज्यादा जगहों पे मिलेगी. सो ट्रिंडर रिएक्शन की हमने यूटिलाइजेशन देख ली. इसमें जो H2O2 बनता है, it is allowed to react with a non-colored substance. और हमने आपको ये बताया था कि जी नॉन कलर में जो होते हैं उनमें 4-अमाइनो एंटीपायरीन भी होता है, 4-अमाइनो फिनाजोन भी होता है, और फिनोल के साथ ये ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ peroxidase. A color compound is formed which is known as a quinone or quinone imine. ये कलर कंपाउंड होता है. इट इज मेजर्ड फोटोमेट्रिकली. ठीक है जी. और जितना कलर काउंट प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. जी पीओडी इज peroxidase. ठीक है जी. तो 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड peroxidase. अब इसमें एक्चुअली जो मेन स्टोरी है वो ज्यादा रिवॉल्व करती है H2O2 के साथ. जितने भी इंटरफेरेंस, नेगेटिव इंटरफेरेंस मैंने जो बताए हैं आपको, पहले उनके बारे में सुनते हैं कि वो क्या करते हैं. जितने भी नेगेटिव इंटरफेरेंस होते हैं वो H2O2 के लेवल के ऊपर एक्ट करते हैं. एंड दे एक्ट इन सच अ वे कि वो जो इंटरफेरेंस होते हैं दे कंपीट फॉर बाइंडिंग टू H2O2. ठीक है ना. यानी एक कंपटीशन होता है H2O2 के साथ बाइंडिंग का फॉर दैट इंटरफेरेंस. और जो हमारा नॉन कलर्ड जो हमारा कंपाउंड है, यानी कि 4-अमाइनो एंटीपायरीन, यानी समझने की बात यह है कि एक दरम्यान में H2O2 पड़ा हुआ है, और जब कोई इंटरफेरेंस होगा एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हमारा ये कंपाउंड है जो कि हमने फिनोलेटेड कंपाउंड जो हम इसे कह सकते हैं, जो कि ये कंपीट करते हैं फॉर बाइंडिंग विद H2O2. और अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इस जो क्रोमोसोम जो है इससे ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा H2O2, ये जस्ट टग ऑफ वॉर है. तो अगर इनका मतलब वो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो ये ज्यादा से ज्यादा जो है इसको अपने साथ बाइंड कर लेंगे, और कम से कम जो है वो अवेलेबल होगा फॉर बाइंडिंग विद H2O2. सो हमारे रिएक्शन में, जैसे हमने अभी NADPH की बात की थी, सो हमारे रिएक्शन के लिए जो एक्चुअली जो अवेलेबल जो H2O2 है वो कम हो जाता है. सो इसकी वजह से जो हम व्हाट वी मेजर एक्चुअली इज लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरफेरेंस. ठीक है ना. पॉजिटिव इंटरफेरेंस भी इसी लेवल पे करते हैं कि जो H2O2 के साथ इस तरह कंबाइन करते हैं कि इसके वो लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, या क्रोमोजेंस के साथ मिलके जो है दे रिजल्ट इन फास्टली हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि H2O2 is the point where positive interference and negative interference both act
the negative interference act in such a way that they compete with 4-amino antipyrine phenolated, and they will cause more binding with H2O2, and less is available for binding with this phenolated compound. So जो हमारा glucose जो हम measure करते हैं, that is less as compared to the actually available. And positive जो है वो H2O2 के साथ bind करके, मतलब जो हमारा colored compound जो बनाते हैं oxidizing agents जो है वो, that is more than actually what is actually present in the solution. So this is the basic site कि जहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरफेरेंस जो है वो काम करते हैं. प्लीज इसकी बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. ये दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन एवरी एग्जाम. किसी भी लेवल का एग्जाम है, एमसीपीएस का एग्जाम है, ग्रेडिंग का एग्जाम है, एफसीपीएस का एग्जाम है, जहां ग्लूकोज की बात होगी वहां ग्लूकोज ऑक्सीडेज आएगा. जहां ग्लूकोज ऑक्सीडेज की बात होगी वहां इंटरफेरेंसेस की बात होगी. जहां इंटरफेरेंसेस की बात होगी वो पूछेंगे कि ये किस लेवल पे एक्ट करते हैं. So all of them act at the level of H2O2. If they are negative interferences, they will compete with those interferents जिनका हमने नाम लिया है कि जी वो uric acid और tetracycline है वो, they will compete with this 4-amino antipyrine phenolated, and they will cause more binding of this chromogen. So less is available to react with H2O2. So it will result in less production of less color compound, as a result of which the glucose level which we measure is less than actually present in the sample. I hope so कि मेरे ख्याल है very clear understanding इस subject की होनी चाहिए आपको. If any confusion or any problem, please let me know. आप mics पे भी बात कर सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं. लेकिन we should have a very clear, बल्कि आप ये समझें कि मेरी आज की टॉक का जो मेजर पीक जो है ना सब्जेक्ट, वो ये चीज है. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सो ये सारी मैंने आपको लिख दी है. ठीक है जी. ये सारे इंटरफेरेंस का आपको पता होना चाहिए. नेगेटिव इंटरफेरेंस, यूरिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, ट्राइटासाइक्लिन, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है जी. और ये मैंने आपको सारा फिनोमेना लिख दी है जी. सोल्यूशन इसका क्या है, ये एक और चीज है. सोल्यूशन इसका ये है, ये मैं दोबारा इस सेक्शन पे जाना चाहता हूँ कि इसमें सॉरी सर ये कि इसका सोल्यूशन इसमें होता ये है कि इस रिएक्शन में कहीं पे जाकर एक मैं आपको बताता हूँ कि सोल्यूशन इसका प्रॉब्लम ये है कि जी बताइए क्या सवाल, क्वेश्चन क्या है जी आपका, काइंडली दोबारा जी. Biochromatic measurements in hexokinase method. उसका एंड पॉइंट मेथड है उसका. हेक्सोकाइनेज का एंड पॉइंट मेथड है जिसमें उसका एडवांटेज वो एडवांटेज नहीं है. ये सिर्फ वो एक एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज है. इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है. वो इसका एक एंड पॉइंट मेथड है. एक्चुअली सॉल्यूशन इसका प्रॉब्लम का ये है कि हम जो मेन सॉल्यूशन है वो ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो है ये सेकंड वाला मेथड, सेकंड वाला रिएक्शन. क्योंकि सेकंड वाले रिएक्शन में जो है ना वो हमारा हो रहा है, ठीक है ना, कि जो H2O2 बनता है. तो इसमें ये होता है कि इस मेथड में जो ऑक्सीजन की जो है वो कंजम्पशन होती है, ठीक है ना, जो कि मैं ख्याल इसमें मेंशन करना भूल गया. ये फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, प्लस H2O2 मैं इसमें लिखना भूल गया. तो इसमें ऑक्सीजन की भी जो है वो कंजम्पशन होती है. तो उसमें अब दो चीजें हो रही हैं. एक तरफ ऑक्सीजन की फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन की भी कंजम्पशन हो रही है और फर्स्ट रिएक्शन में आपके H2O2 भी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है जी. जितना इस ग्लूकोज रिएक्शन में ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेज, उतना ग्लूकोनिक एसिड और H2O2. तो हम एक तरफ तो मेजर कर रहे हैं कि H2O2 मतलब कितना बन रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि H2O2 के साथ बहुत सारे इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हैं. सो हम इस रिएक्शन में इस जगह पर हम ये मेजर करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई है. सो वन ऑफ द मेथड टू मेजर कि कितना ग्लूकोज है इज दैट यू मेजर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच इज प्रोड्यूस,
एंड द अदर इज वी हैव टू मेजर के कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रही है, ये ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो रही है. दैट इज डन बाय अ टेक्निक व्हिच इज नोन एज द पोलैरोग्राफिक टेक्निक. ठीक है जी. ये इस रिएक्शन में चूंकि हमें सेकंड जो ट्रिंडल रिएक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि H2O2 के साथ बहुत सारे इंटरफेरेंस है. ठीक है. और हमने ये भी देखा है कि ग्लूकोज जब वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज में बनता है तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सॉरी मैं उसको लिख नहीं सका, तो वो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा उतनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है. सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट एन ऑक्सीजन कंजम्पशन इलेक्ट्रोड can be used to perform the direct measurement of oxygen which is consumed by a polarographic technique which avoids the interference. जी वालेकुम सलाम. एनी क्वेश्चन जी? अपना क्वेश्चन है काइंडली बात कीजिएगा, तो वरना इसको जरा काइंडली म्यूट कर दीजिए. सो दिस ऑक्सीजन डिप्लीशन इज and it is directly proportional to the glucose. So वैसे है कुछ डॉक्टर मीना काइंडली म्यूट कर दें, काइंडली प्लीज. सो द ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड की प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आपका H2O2 बनता है, ठीक है ना, that has a lot of interferences. So to overcome to this we measure the oxygen which reacts with the glucose in the presence of glucose oxidase, and that consumption which is चले कर मैडम अपना म्यूट कर दीजिए. So that oxygen which is consumed, it is measured indirectly by an electrode, and that technique is known as the polarographic technique. जी. अगर उसमें इंटरफेरेंस आती है तो why not we do only oxygen consumption analysis rather तो than कह रहा है कि वो करें ना, लेकिन that is a very sophisticated technique and that is very expensive. क्योंकि हम रूटीन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन में जो हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड जो है वो, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन इज के जी अगर उसमें इतने प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस में कि H2O2 में इंटरफेरेंसेस करता है, तो हम ऑक्सीजन कंजम्पशन इलेक्ट्रोड क्यों नहीं यूज करते? वी शुड आइडियली यूज इट, but it is a somewhat sophisticated technique and it requires it's an expensive technique. हम रूटीन मेथोडोलॉजीज में ये यूज नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कहीं रिसर्च करना चाहते हैं, या डेफिनेटली अगर आप इसको मेथोडोलॉजीज में इसको बहुत सेंसिटिव रखना चाहते हैं या इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट एंड द टेक्निक इज अवेलेबल. ठीक है जी. टाइम थोड़ा रह गया जी, बस ये बिल्कुल उसी तरह ये ग्लूकोज की हमने बात की है कि जी एक मैं सिनेरियो पढ़ देता हूँ कि जी you are HOD pathology in pediatric hospital, consultant neurologist has you regarding CSF glucose results. He says the results are usually very low in PhD cause of this problem. It's just like that KGF के अंदर, और CSF में ascorbic acid के साथ जो है वो प्रॉब्लम देता है. ठीक है जी, तो वो उसमें नेगेटिव बायस हो जाता है. इट्स जस्ट लाइक जिस तरह को मैंने जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज का मेथड आपको बताया. ठीक है जी. देन अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड सिंपली जो मैंने अभी आपको बताई है, दैट इज द ऑक्सीजन ग्लूकोज कपल्ड विद ग्लूकोज ऑक्सीडेज विद ऑक्सीजन कंजम्पशन. मैंने इसको दोबारा लिख दी है ताकि ये, क्योंकि ये एक अलग टेक्निक है, लेकिन मैंने आपको इसकी सारी एक्सप्लेन कर दी है. तो कि जी आप इंस्टेड ऑफ H2O2 यू कैन मेजर the rate of consumption of oxygen by oxygen electrode. ठीक है जी, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता. अब अगली चीज आ गई जी यूरिन से रिलेटेड कि जी ड्यूरिंग अ रूटीन क्लास ऑफ BSc a student asked why can't we measure glucose in urine in the lab using our method. कि हम जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड है, हम इसको यूरिन में मेजर करने के लिए जो है ना वो ग्लूकोज क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ जी, कोई आइडिया है किसी को जी? ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर बताया जी, जबरदस्त. ठीक है जी, ठीक है जी, लिख दिया उन्होंने. मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड्स के बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं. वन ऑफ द इंटरफेरेंस इज यूरिक एसिड, और नॉर्मल यूरिन के अंदर जो है वो यूरिक एसिड मौजूद होता है, बहुत हाई होता है. यूरिन एंड क्रिएटिनिन ये बहुत ज्यादा हाई. सो जब हम इस मेथड को यूज करते हैं फॉर यूरिन में, तो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं
ठीक है ना, इवन क्रिएटिनिन भी इंटरफेरेंट करती है, तो वो दे गिव यू हाई पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है जी। तो उसका जो हल है, व्हाट इज द, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपने करना ही है, ये नई बात है, ये बिल्कुल नई बात। हाँ जी बताइए, ये पहले कहीं नहीं दिया हुआ। ठहरें, ये बिल्कुल एक आज की नई क्वेश्चन बात। ये है कि अगर यूज में करना ही है तो किस तरह करें? तो फिर आप क्या स्टेप करेंगे कि नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। एनीबॉडी जी, एनीबॉडी एनीवेयर फ्रॉम पाकिस्तान? जी, 4th ईयर ट्रेनीज, मेजर माजदा, कुछ कर सकते हैं? मेजर माजदा, सैन, जिन लोगों ने इम्तिहान में पेयर होना है। ओके चलें, कोई ऐसा मसला नहीं। We use ion exchange resins. Urine is first treated with ion exchange resin. It is used to remove all the interference. ठीक है, वो एक अलग टेक्निक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है। एनीबॉडी? थैंक यू जी भावलपुर, थैंक यू वेरी मच। टाइम थोड़ा रह गया जी, ठीक। अच्छा, जो हम फिर भी यूरिन के स्ट्रिप्स के अंदर जो यूज करते हैं, दैट इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, ठीक है जी। और उसके लिए जो हम रिएक्शन यूज करते हैं, उसमें एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है जो कलर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है जी। कहीं पे पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, जो क्रोमोजेंस होता है ना, ये ग्लूकोज की जितनी भी स्ट्रिप्स होती हैं उनमें बेसिकली ऑक्सीडेज एंजाइम, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम यूज करते हैं, और उसके साथ एक क्रोमोजेन मतलब होता है जो कि फाइनल जो H2O2 बनता है उसको मतलब ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है। तो वो डिफरेंट किस्म के प्रिपरेशन में डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ में जो है वो पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, कुछ में ये TMTB यूज करते हैं जिसे कहते हैं टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक है ना, और कुछ में डाईहाइड्रोक्सी नेफ्थलीन, ठीक है ना, ये इनको हम यूज करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये मेथड्स हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन के। बस आपको एक चीज सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लूकोज स्ट्रिप्स, जो हम ग्लूकोज स्ट्रिप्स यूज करते हैं, दैट आर बेसिकली बायोसेंसर्स, और इसमें कोई ना कोई एंजाइम यूज करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज करते हैं, ग्लूकोज एक्सोकाइनेज यूज करते हैं, और ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जब हम यूज करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो भी बनता है उसको हम मेजर करने के दो तरीके होते हैं। या तो इनके साथ हम कोई डाई अटैच कर देते हैं, ठीक है जी, या इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करते हैं कि जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज जो भी ये बनाते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट होता है, उसको हम किसी डाई के साथ कंबाइन कर देते हैं, और वो डाई जो है इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड प्रोडक्ट बना देती है। उस कलर को हम मेजर करते हैं, एंड दैट कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, absorbance of that color is directly proportional to the concentration of glucose. या इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करते हैं जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम उस चिप के जरिए जो है वो अपना उस इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, तो दैट मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। सो ये मैंने सारा लिख दिया है। एक सिर्फ ये लास्ट ये देख लीजिएगा कि ये हमारी स्ट्रिप होती है, इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। एक वहां जहाँ के एक सैंपल लगाया जाता है, ठीक है, सैंपल एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद दूसरी जगह होती है कि जहाँ पर आपका एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है, जो कि इसको या जो भी एंजाइम आप यूज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। फिर एक उस प्रोडक्ट का अल्टीमेटली H2O2 या जो भी चीज बनी होती है, उसमें मैंने आपको बताया उसकी ऑक्सीडेशन होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक मीडिएटर होता है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड पार्ट से जो है वो थर्ड पार्ट में लेके जाता है, जहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है। और जिस तरह वो मैंने आपको बताया कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सो लेट्स सी, बस 1 मिनट रह गया जी। लेट्स सी व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड historic glucose methods, and of course currently used methods which include hexokinase method, glucose dehydrogenase method, glucose oxidase method, glucose oxidase with oxygen consumption, a bit about urine strips, and of course a bit about glucose strips. एक चीज रह गई जो कि मैंने इंटेंशनली टच नहीं की, कि ग्लूकोज मेथडोलॉजीज फॉर बॉडी फ्लूइड अदर देन मतलब प्लूरल फ्लूइड, ये वो इंशाल्लाह पूरा हम एक सेशन करेंगे जिसमें बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जितने भी एनालाइट्स होते हैं उनके लिए हम क्या मेथडोलॉजी यूज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो कि आई हैव मेड द सब्जेक्ट, यही मेरा
ये है मेरा वो क्या कहते हैं ये जो मैं मतलब वो आपका एक प्रोडक्ट का वो एक लोगो होता है, सो ये मेरा लोगो है जी। ठीक है जी, मुझे याद रखिए, दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं की जरूरत है। टाइम थोड़ा था लेकिन आई हैव मेड द थिंग कॉन्सेप्ट। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज हो तो आई एम अवेलेबल, मेरा मोबाइल नंबर भी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।